Almighty God who has given us this opportunity, and God has blessed us so much. We are so overwhelmed by His blessings that He has given us beyond what we deserve, beyond what we imagine, and beyond we could ever earn. We could haven't ever earned this, पर ये सारियां साडे परमेश्वर दियां उस ऑलमाइटी गॉड दियां ब्लैसिंग्स आ साडे ते असी अपनी खुशी नूं तुहाडे सारियां नाल मिल के सैलीब्रेट कर रहे हैं। असी बहुत ही अज खुश हाँ, तो असी परमेश्वर का धन्नवाद करते हैं। इस समय मैं अपने पास्टर जी नूं वैलकम करदी हाँ कि वो अगे आण ते अज के सारे प्रोग्राम लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु जी का कि प्रभु जी ने मौका दिता कि असी सारे इकट्ठे होके ब्रदर अमजद, सिस्टर अमन, सिस्टर डोरिस, सिस्टर डॉली, बेटी होप, इन्हां दी खुशी विच असी शरीक हो सके। और मैं तुहाडे सारिआं दा वेलकम करदा। इस तो पहला कि असी वर्शिप दे विच जाइए, परमेश्वर दे नाम नूं सुणीए, ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਈਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੰਗੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਬੇਟੀ ਹੋਪ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸਨਿੰਗ ਹੈ ਐਂਡ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਰਡ ਕਿ ਬ੍ਰਦਰ ਅਮਜਦ ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਅਮਨ ਦੀ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਜੀ ਮੈਰਿਜ ਐਨਵਰਸਰੀ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਾਰਡ। ਐਂਡ ਵੀ ਗਿਵ ਆਲ ਗਲੋਰੀ ਆਲ ਆਨਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਧੰਨ 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 ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਾਧਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਭਜਨ ਮਾਲਾ ਦੀ ਭੇਂਟ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਵੀ ਗਿਵ ਆਲ ਗਲੋਰੀ ਆਲ ਆਨਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਟੂ ਯੂ ਐਂਡ ਯੂ ਓਨਲੀ। ਐਂਡ ਵੈਨ ਵੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਲਾਰਡ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਲਓ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। Praise Jesus. खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। हम भूल
झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। हमारे बाल बच्चों पर सदा नजर करम रखना। हमारे बाल बच्चों पर सदा नजर करम रखना। जैसे आज तक रहमत का तेरी हम पे साया है। कि जैसे आज तक रहमत का तेरी हम पे साया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, तूने ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। हमें ये दिन दिखाया है। हमें ये दिन दिखाया है। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਤੇ ਖੁਦਾਇਆ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਿਨ, ਸੋਹਣਾ ਦਿਨ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਇਕੱਠੇ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਐਤਕੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਪੈਰਾ ਹਮਾਰੇ ਬਾਲ ਬੱਚੋਂ ਪਰ, ਤੇ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਰ ਪੈਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦਾ। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया। मेरा जीवन बदल गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया। मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया। मेरा जीवन बदल गया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया। तूने जान बदन देकर यीशु मुझे बचा लिया। तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तेरे लहू से मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन बदल गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है।
पाता है, तेरी राहों पे चल चल कर रूह इनाम में पाता है, तेरी राहों पे चल चल कर रूह इनाम में पाता है। तेरे रूह से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु तेरी हजूरी में कुदरत और जलाल है, यीशु तेरी हजूरी में कुदरत और जलाल है। यीशु तेरे ही हाथों में मौजज़ात कमाल है, यीशु तेरे ही हाथों में मौजज़ात कमाल है। तेरे छूने से मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन संवर गया। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। बंधन टूट गए गंभीर मुक गए अथरू सुख गए खुदा। बंधन टूट गए अथरू सुख गए गंभीर मुक गए खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। मेरे चाहे बन जांदा ख्याल रखदा हर पल दा, मेरे दुख सुख दा सांझी मेरे नाल नाल चलदा, मेरे दुख सुख दा सांझी मेरे नाल नाल चलदा। ना मैं अकड़ा ना मैं थकना करांगा महिमा महिमा है खुदा। ना मैं अकड़ा ना मैं थकना करांगा महिमा महिमा है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। ईमान जो मैं करिया भला यीशु दा फड़िया, उन्हें तरस मेरे ते खा मैनू चंगा भी करिया, उन्हें तरस मेरे ते खा मैनू चंगा भी करिया। चाजे चढ़ गए डुबे भी तर गए दुश्मन हार गए खुदा। चाजे चढ़ गए डुबे भी तर गए दुश्मन हार गए खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। यीशु जीवन दरिया जिस चाहता करना, मेरे वर्गे पापी दा हथ
हथ यीशु ने फड़िया मेरे मरे पापी दा हथ यीशु ने फड़िया यीशु जीवन दा दरिया विच चौंदा करना मेरे वर्गे पापी दा हथ यीशु ने फड़िया मेरे वर्गे पापी दा हथ यीशु ने फड़िया ना कोई लभ्या लभ्या ना कोई होना होना तेरे जिहा सोना सोना है खुदा ना कोई लभ्या लभ्या ना कोई होना होना तेरे जिहा सोना सोना है खुदा जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ 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 ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਮਨਜੋਤ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੋਪ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੇਬੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਜੀ ਅਤੇ ਭਰਜਾਈ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੱਚਮੁੱਚ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੁੜੀ ਲੱਭਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਭਾਬੀ ਆਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਸਟੈਸਟ ਆਫ ਬੈਸਟੈਸਟ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਗਿਵਨ ਦ ਬੈਸਟੈਸਟ ਆਫ ਚੋਇਸੈਸਟ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਗਿਵਨ ਅਸ। ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਥੈਂਕ ਹਿਮ ਇਨਫ, ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਥੈਂਕ ਹਿਮ ਇਨਫ। ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ। आराधना तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। मैं वांगू का पादे उठता ही जावांगा तेरी महिमा कर करके नवा बल में पावांगा। मैं वांगू का पादे उठता ही जावांगा तेरी महिमा कर करके नवा बल में पावांगा। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। मैं तेरी हाँ रचना तेरे विच वसदा हाँ तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा हाँ। मैं तेरी हाँ रचना तेरे विच वसदा हाँ तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा हाँ। आराधना 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 तेरी आराधना आराधना
लग के मैं दुनिया भुल जावांगा, तेरी महिमा दे नगमे मैं सदा ही गावांगा। तेरे गल लग के मैं दुनिया भुल जावांगा, तेरी महिमा दे नगमे मैं सदा ही गावांगा। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। अपने चरना विच यीशु मैनू दे दे तू पनाह, सारा जग करदा सजदा वेख के तेरा जलाल। अपने चरना विच यीशु सानू दे दे तू पनाह, सारा जग करदा सजदा वेख के तेरा जलाल। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। परमेश्वर का ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਮਹਿਮਾ ਜਲਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। May that almighty God be glorified. May he be glorified. May he be praised. I thank his name. We praise his name together, O Lord. Thank you, Lord. Thank you for all the beautiful memories, O Lord, and thank you for all this beautiful time, O Lord. O Lord, and whatever happens, O Lord, I know that you are in control, O Lord. My God is in control. Yes, Lord. Whatever the odds, O Lord, the outcome is always the same. We are always victorious, O Lord, because we believe in the holy name of the true God. We believe in your holy name, O Lord. Thank you, Lord. ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਬੇਬੀ ਹੋਪ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸਟਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ। हालेलुया। मैं एक बार फिर ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਭਜਨ ਗਾਏ ਆ, this glory all goes to only one and only one, Lord Jesus Christ. ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਰਰਾ, the Lamb of God. Only he is worthy to be praised. ਲੱਖਾਂ ਲੱਖ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਸਵਰਗ ਤੇ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕਦੀਆਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੀਆਂ। He is the creator. He is not creation. He is creator. ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਅਮਜਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਲਿੰਕ ਸ਼ਾਲੋਮ ਚਰਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀ ਹੋਪ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰਿਸਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕ੍ਰਿਸਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮਕਰਨ, ਐਂਡ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇ। ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਿੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੋਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। 6 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਹੋਪ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ। 6 ਜੁਲਾਈ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਨਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਨਾਊਂਸ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਹੋਪ, ਹਰ ਟੈਸਟੀਮਨੀ, ਹਾਊ ਸ਼ੀ ਕੇਮ ਹੇਅਰ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ, ਯੂ ਨੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਹੋਪ ਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਹੋਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਓਕੇ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਾਈ ਵੀ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਅ ਚਾਈਲਡ ਟੂ ਦ ਲਾਰਡ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ, ਉਹਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। We take commitment to the Lord that we will raise this child in the favor, in the fear, in the grace of the Lord. And we dedicate this child कि एक परमेश्वर दी disciple बन सके, so that she can walk throughout her life to follow Christ only, कि प्रभु दे पीछे चल सके सारी जिंदगी। We dedicated her। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ। ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਆ, ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਇਨਕਰੇਜ ਦੈਟ ਚਾਈਲਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਟੈਲ ਹਰ, ਹੈ ਨਾ, ਦੱਸਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਐਬਨੇਜ਼ਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ, ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਆਨਸਰ ਹਿਮ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਵਿਲ ਗੋ ਐਸਟਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਫੈਮਿਲੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਡੰਡਾ ਮਾਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਦੈਟ ਦੇ ਮੇ ਨੋ ਐਸਟਰੇ ਐਟ ਆਲ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦੇਅਰ ਲਾਈਫ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਡਿਊਟਰੋਨੋਮੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਵਰਣ, ਉਹਦਾ 6 ਅਧਿਆਏ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਆਇਤ तक। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे जीव और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूं, वे तेरे मन में बनी रहें, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर बैठे मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम करें,
और इन्हें अपने अपने घर की चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लगाना। यह परमेश्वर की कमांड है। सॉरी मैं हिंदी में आ गया क्योंकि मैं हिंदी बाइबल पढ़ता हूं। यह परमेश्वर की कमांड है। खुदा ने अपने बंदे मूसा को बोला, जो तेरे घर में बच्चे पैदा हों, तेरा वंश पैदा हो आगे, उसको एक काम करना, उसको परमेश्वर के वचन के बारे में, परमेश्वर के बारे में सिखाना, ताकि वो अपनी जिंदगी भर उससे दूर ना हटे। खुदा का कलाम कहता है अपने बच्चों को हम जो शिक्षा बचपन में दे देते हैं ना, वो जिंदगी भर उससे नहीं हटते। राइट? सो जब हम इसको डेडिकेट करते हैं होप को, वी नीड कमिटमेंट फ्रॉम द पेरेंट्स एज वेल, and we need commitment from the congregation, or we can say as a society we need commitment कि हम सब एक बच्चा जो परमेश्वर ने दिया है उसकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए, वो इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली जब वो ग्रो करती है तो वो परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह में बढ़े। हम इसके लिए कमिटमेंट करने आए हैं। राइट? सो आप मेरे साथ रहना, और मैं पास्टर समीर जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो भी आगे आ जाएं प्लीज सर। प्रभु यीशु बालकों को प्यार करते हैं, बच्चों को प्यार करते हैं। वेलकम सर, यू मोस्ट वेलकम। खुदा के कलाम में लिखा है कि लोग अपने बच्चों को प्रभु यीशु के पास लेके आए ताकि वो उनको बरकत दे, उनके ऊपर हाथ रखे, और प्रभु के चेले जो हैं उनको डांटने लगे, परे रखो, परे परे रखो। प्रभु लिखा है क्रुद्ध हुए, हिंदी में क्या लिखा है, ही वॉज एंग्री। ही सेड बच्चों को मना मत करो, उन्हें मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसा ही का है। सो वी कैन नॉट डिनाई, बिकॉज जब परमेश्वर ने बरकत दे दी तो दे दी, हम कौन होते हैं उसको रोकने वाले। सो जो हमें एज ए प्रीस्ट खुदा ने हिदायत दी है, जैसे मूसा को बोला था, हारून को बोला था ये ब्लेस करना, तो हम यहां पे बेटी होप को ब्लेस करने के लिए आए हैं। आमीन। आगे आ जाएं आप प्लीज। एबेनेज़र मसा कितना तेल दे, ऑयल दे। ब्रदर अमजद एंड सिस्टर अमन, मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा आपसे, आपने हाँ या ना में आंसर देना है मेरे को। जब परमेश्वर ने आपको ये बेटी होप दी है, पहले क्या आप खुद अपना रिलेशन परमेश्वर के साथ ठीक रखेंगे ताकि आप उसके लिए एक नमूना बन सकें? क्या आप एज ए गुड पेरेंट, नॉट बैड पेरेंट, गुड पेरेंट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हम उसकी हर तरह से ग्रोथ में, चाहे वो प्रेयर हो, काउंसलिंग हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, उसमें उसकी मदद करेंगे? आप अपने घर में बिब्लिकल वैल्यूज दिखाएंगे कि जो परमेश्वर का वचन कहता है हम उसके अनुसार अपने घरों में वैसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ताकि उसके लिए एक नमूना हो? और आखिरी बात, क्या आप अपने बच्चे को परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति में रेज करेंगे? परमेश्वर आपको बरकत दे। अब एज ए कॉन्ग्रीगेशन में आपसे भी प्रश्न पूछता हूं। खुदा के कलाम में लिखा है और यीशु मनुष्य और परमेश्वर दोनों के अनुग्रह में बढ़ता गया। परमेश्वर का अनुग्रह बहुत जरूरी है, लेकिन मनुष्य उनकी सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। हम जिस संसार में रहते हैं वहां पे फिसलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, राइट? एंड वी एज ए सोसाइटी, एज ए कम्युनिटी, एज ए कॉन्ग्रीगेशन, हमें भी एक निर्णय लेना है कि क्या हम होप के लिए सामाजिक, मानसिक और आत्मिक तौर पर एक सपोर्ट बनेंगे? आमीन। अब बारी है जब सबने स्वीकार किया है
हम बेटी होप को प्रभु यीशु मसीह के नाम में, पिता के नाम में और पवित्र आत्मा के नाम में मसा करेंगे, ठीक है। और बस जी आप पकड़ लें होप को। अब होप की बारी आती है। होप का नाम है होप क्रिश्चियन गिल। होप का मतलब है आशा, उम्मीद। और जब हम उसको मसा करने लगे हैं, हम ये प्रार्थना करते हैं कि शी विल बी होप फॉर मैनी मैनी लाइव्स, बहुत सारे लोगों के लिए वो एक आशा हो, जीवित आशा। इसको देखने के द्वारा लोग बोले हाँ ये परमेश्वर की बच्ची है। आमीन। ये होप हो दूसरों के लिए, जो लोगों के निराश जीवन है इसको देख के आनंदित हो जाए। यीशु मसीह के पास जो लोग आए वो पीड़ा में, दुख में, बीमारी में, लाचारी में गमगीन होके आए और प्रभु को बोला हालत बड़ी खराब है, जे तू कुछ कर सकता साढ़े ते कर दे। प्रभु पूछते हैं मांग क्या मांगता है? एक भी जन खाली नहीं गया। और हम प्रार्थना करते हैं होप उसी आशा को लेके, उसी उम्मीद को लेके लोगों के बीच में खड़ी हो। आमीन। ओके। मैं बेटी होप को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करता हूं। और आज से इसका नाम होप क्रिश्चियन गिल है। और ये बहुतों के लिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के द्वारा बहुतों के लिए एक नमूना होगी। आमीन, आमीन। से बरकत देते। छोटी दुआ करेंगे इस होप के लिए। बड़े मेहरबान बाप, बड़े हलीम और नम्र और बड़े दीन होकर खुदा, तेरी बरकतों को याद करते हुए खुदा कि बच्चे तेरी दी हुई मिरास हैं प्रभु जी, और तेरी दी हुई बरकत हैं खुदा। और तूने जो उम्मीद दी है, ये होप दिया है खुदा, और तेरे कलाम के अनुसार हमारी उम्मीद अनडिफाइल्ड है, अनकरप्टेड है, इम्पैरिशेबल है, कभी ख़त्म नहीं होती, कभी वो ख़राब नहीं होती खुदा। और दुआ करता हूँ खुदा, ये बेटी अपने माँ बाप के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने नेशन के लिए आशीष और बरकत का सबब बने। यीशु नाम से होकर मांगते, आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर समीर। परमेश्वर का धन्यवाद है कि आप हमारे बीच में आए। एंड वी वेलकम यू इन द नेम ऑफ प्रेशियस नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। प्रेज गॉड। आप आगे आ जाएं। मैं इनका मैरिज एनिवर्सरी भी है, तो हम इनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं ब्रदर अमजद को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बरकत देता हूँ। सिस्टर अमन को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बरकत देता हूँ। बेटी होप को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बरकत देता हूँ। पिता, आप इनके जीवन में अपने कार्यों को प्रकट करें और आपकी अनुग्रह की दृष्टि प्रभु इनके ऊपर, इनके घराने के ऊपर हमेशा बनी रहे खुदा बाप जी। और पिता परमेश्वर, इनके जीवन प्रभु जी आपके लिए फलदायक वृक्ष के माने दो प्रभु। और पिता परमेश्वर, ये बहुतों के लिए बरकत का कारण हो। और पिता परमेश्वर, इनका जीवन भर प्रभु ये आपके साथ साथ चलते रहें। और पिता परमेश्वर, आपके लिए बहुत सा फल लेके आए। और पिता परमेश्वर, इनके द्वारा बहुत सारे लोग आपके नाम को महिमा दें और आपको अपना उद्धारकर्ता, अपना सेवियर, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करें, यीशु के नाम से। आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बैठे आप। सॉरी पास्टर जी, आप एक मिनट, सॉरी। अभी हम परमेश्वर के कलाम की ओर जा रहे हैं और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मुझे पता है अभी टाइम इज़ ऑलवेज 9 बज गए ना, सो मैं कोशिश करूँगा जल्दी वाइंड अप करूँ। मैं रिक्वेस्ट करूँगा पास्टर जी से प्लीज़ प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें वचन के लिए। सो आइए अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएं और उसका शुक्र और धन्यवाद करें। अपने दिलों और मनों को तैयार करें आज के कलाम के लिए, आज के वचन के लिए, ताकि ये वचन हमारे दिलों और मनों में असर डाले और हमारी ज़िंदगियों में ये जो है एक फल को लेकर के आए।
आइए दुआ करें। बड़े ही मेहरबान बाप, बड़े हलीम, नम्र और दीन होकर प्रभु आपके पास आते हैं खुदा। अपने आप को छोटा करते, अपने आप को प्रभु जी आपके सामने झुकाते प्रभु जी। पवित्र आत्मा जी आपकी अगुवाई को मांगते प्रभु जी। और प्रभु जब हम आपकी वाणी को सुनने वाल की तरफ जाते हैं खुदा, हमें सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला मन दीजिएगा खुदा, ताकि आज का कलाम, आज का वचन हम सब की जिंदगियों के लिए बाइस से बरकत हो खुदा, आशीष का कारण बने खुदा। प्रभु ये कलाम हमारे दिलों में जो बीज बोया जाता है खुदा, प्रभु ये जड़ पकड़े प्रभु, आप में इनग्राफ्ट हो जाए खुदा, आप में ये बड़े और एक बड़ा पेड़ बने खुदा, उस पेड़ पर फल लगे खुदा, ताकि दूसरे लोग भी इसके द्वारा आशीषित हो सके प्रभु जी। पादरी साहब को आपके पवित्र लहू में छुपाता हूं खुदा, आपके डबल पोर्शन को इनके लिए बोलता हूं खुदा। प्रभु सर के बालों से लेके पांव की तलियों तक खुदा अपने बेटे को मसा करे खुदा, इसका एक एक शब्द प्रभु जी आपकी आत्मा के द्वारा हो प्रभु जी, ह्यूमन विजडम से नहीं, इंटेलेक्चुअल से नहीं, हमारी समझ और ज्ञान से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा कहा जाए, और ताकि ये कलाम फले फूले और हमारी जिंदगी में फलवंत बने और 100 गुना फल को लेकर के आए। प्रार्थना को यीशु मसीह के मीठे और जिंदा और जलाली नाम से होकर मांगते, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज? सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि हम परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं। आमीन। अब इसमें क्या खुशी है? परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं, क्योंकि ये वचन मेरा नहीं है, ये परमेश्वर खुद बोला हुआ है। और जब परमेश्वर हमसे बात करे तो इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? आमीन। इट्स गॉड्स वर्ड, नॉट माइन, मैन मेड नहीं है ये लिखा हुआ, सो इट्स गॉड्स वर्ड। और मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरे साथ कोई पढ़ सकता है, ब्रदर मनिंदर आप माइक ले लो। यूहन्ना की अंजील, यूहन्ना गॉस्पेल ऑफ जॉन, उसका 3 अध्याय 1 आयत से लेकर 15 आयत तक। यूहन्ना की अंजील 3 अध्याय 1 से 15। ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं इसके ऊपर कुछ बात करूंगा। फरीसियों में से निकोदेमस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की आरे से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकोदेमस ने उसको उत्तर दिया कि ये बातें क्यों कर हो सकती हैं? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इज़राइलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसी की गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कहीं और तुम प्रतीति नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर क्यों कर प्रतीति करोगे? और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए,
ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। आमीन। आमीन। ये हमने एक छोटा सा वाक्य पढ़ा। निकोदेमस वो एक मंदिर का सरदार है, मैं इजी भाषा में बोल रहा हूं। सरदार मतलब अगुआ है, धार्मिक अगुआ है वो। और जब वो धार्मिक अगुआ है तो उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ सुना और देखा, और खुदा के कलाम में लिखा है कि वो रात को मिलने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आया और प्रभु को बोलता है, जो काम तू कर रहा है अगर परमेश्वर उसके साथ ना हो तो वो कभी नहीं कर सकता। प्रभु क्या काम कर रहे थे? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह के पास भेजा, भी क्या आने वाला मसीह तू ही है? प्रभु कहते हैं उसको बोल जाके, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, गरीबों और लाचारों को सुसमाचार सुनाया जाता है। धन्य वो है जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। ये प्रभु जी काम कर रहे थे। और इस अगुए ने, इस सरदार ने जब सुना और देखा कि इतने बड़े बड़े काम, तो लिखा है वो रात के पहर प्रभु यीशु के पास आया और बोलता है, जो ये काम तू कर रहा है मैं जानता हूं, क्योंकि मैं एक धार्मिक आगू हूं। क्यों कोई नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। सारी जिंदगी होगी मेरे को शराब पढ़ते हुए, किताबें पढ़ते हुए, स्क्रिप्चर्स पढ़ते हुए, बाइबल पढ़ते हुए, सब कुछ हमने करके देख लिया, ये काम नहीं कर सकता। प्रभु कहते हैं मैं तुझे सच कहता हूं। अगर मैं होता ना, सिंपल बताता हूं, मैं कहता हाँ तो सही बोल रहा है, मैं ऊपर से आया हूं। कोई जवाब नहीं दिया। प्रभु जी कहते हैं, निकोदेमस अगर तू नए सिरे से ना जन्मे तो स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकता। प्रवेश की तो बात ही अलग है। यू कैन नॉट इवन सी द किंगडम ऑफ गॉड। क्योंकि प्रभु को निकोदेमस के बारे में पता था, इसकी बात तो मेरे से ये चमत्कारों की कर रहा है, लेकिन ही इज सर्चिंग फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। आमेन। एंड जब हम प्रभु के पास जाते हैं ना, मैं दावे के साथ कहता हूं, उससे पहले कि हम उससे बात करें, वो हमारे मनों में जानता है कि ये कब क्या बात करना सुनना चाहता है मेरे से। आमीन। ही नोज इट बिफोर इवन वी स्पीक। ही नोज इट कि प्रभु हमारे मन को जानता है, आपके मन को भी जानता है, मेरे मन को, क्योंकि उसने हमको बनाया और हम उसके हैं, हम उसकी रचना है। अब प्रभु जी निकोदेमस को कहते हैं, आई नो what you are looking for, what you are searching for। हम भी बहुत बार अपने जीवनों में बहुत कुछ सर्च करते हैं। We are searching for truth, truth, truth। We are searching for life, we are searching for peace, we are searching for abundance life, we are searching for many things in our lives। बहुत कुछ सारी जिंदगी ढूंढते रहते हैं, मिलता नहीं है। पैसा कमाया सब खत्म, आखिर में सेहत खराब सब खत्म। जैसे हम आए थे वैसे चले गए। प्रभु जी कहते हैं नहीं 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 नहीं, निकोदेमस आई नो व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। आप लोगों को भी प्रभु जी आपकी इच्छाओं को जानते हैं, मेरी इच्छाओं को जानते हैं। ही नोज बाय योर हार्ट। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, मनों का परखने वाला कौन है? परमेश्वर है। सो अगर प्रभु हमसे कोई बात कर रहा है तो वो हमारे मन को पहले जानता है, उसको पता है इससे क्या बात करनी है। खुदा के कलाम में लिखा है, चेलों ने प्रभु को बोला, हे पिता, हे परमेश्वर, हे प्रभु जी हमारे विश्वास को बढ़ाएं। प्रभु ने ये नहीं बोला भी तुम ऐसा करो तो तुम्हारा विश्वास बढ़ जाएगा, ऐसा करो तो तुम्हारा विश्वास बढ़ जाएगा। ना ना ना। प्रभु कहते हैं, अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो, इस पहाड़ से कह दो ये पहाड़ टल जाए यहां से, तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्योंकि प्रभु जानते हैं कि ये बड़े बड़े काम करना चाहते हैं। अब प्रभु कहते हैं, काम करना चाहते हो, बोलो, मेरे नाम से बोलो। आमीन। मैंने जब ये वचन पढ़ रहा था मैं, तो मैं होप के बारे में सोच रहा था, ब्रदर अमजद के बारे में सोच रहा था, इनके परिवार के बारे में सोच रहा था भी मैं इनको क्या हिदायत दूं, क्या बोलूं इनको।
मेरे को एक वर्ड आया, वो था बॉर्न अगेन। मैं एक बुक भी पढ़ रहा था पिछले दिनों में, बॉर्न अगेन। प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस को बोला, अगर तू नए सिरे से ना जन्मे तो तू स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकता। यू हैव टू बी बॉर्न अगेन। और निकोदेमुस एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछता है। मैं भी अगर मेरे से कोई बंदा पूछे भी तू नए सिरे से जन्म, वही आंसर निकोदेमुस ने बोला। निकोदेमुस कहता है, क्या कोई अपनी मां के पेट में फिर दोबारा जाए और फिर दोबारा जन्म ले, उसको कहते हैं बॉर्न अगेन? प्रभु जी कहते नहीं। दो तरह के जन्म है। पहला जन्म है शरीर में जन्म, दूसरा है आत्मा में जन्म। और दुख की बात यह है, हम शरीर में पैदा हो जाते हैं लेकिन आत्मा में सारी जिंदगी मरे रहते हैं। और प्रभु जी कहते हैं, जब तक तू नए सिरे से जन्मे ना, जब तक तू आत्मा से ना जन्मे, यू कैन नॉट इवन सी, हिंदी में बोलूं, स्वर्ग को नहीं देख पाता। हम कहते हैं भी स्वर्ग सिधार गए, लेकिन नो वन नोज कि कहां गए, कहां पे, राइट? नो वन नोज। बट यीशु कहते हैं, देयर इज अ श्योरिटी फॉर यू, ऑल ऑफ यू, आप सबके लिए एक श्योरिटी है। वो श्योरिटी है नए सिरे से पैदा होना। अब नए सिरे से पैदा होना क्या है? एक क्रिश्चियन परिवार में जन्म लेना आपको टिकट नहीं दे देता स्वर्ग के राज्य की, या एक अच्छी फैमिली में पैदा होना, एक अमीर परिवार में पैदा होना आपको टिकट नहीं दे देता स्वर्ग के राज्य की। नहीं मिल सकती। लेकिन प्रभु ने टिकट दी है, वो है बॉर्न अगेन। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ, आप अपने दिल में सोचो, मैंने कब बोला? सोचो, मैं पूछूंगा नहीं, सोचो, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ मैंने कब बोला? अब दूसरा क्वेश्चन, क्या उस झूठ ने किसी की लाइफ खराब की? ऐसे कर दो या ऐसे कर दो, कोई बात नहीं, है ना? मैंने भी बहुत झूठ बोले हैं, मैं कोई मतलब ये नहीं हूं कि अब मैं कोशिश करता हूं कि प्रभु में जब मैं नया, व्हेन आई एम बॉर्न अगेन, और प्रभु का पवित्र आत्मा मेरे को संभालता है, अनुग्रह है उसका कि हम पाप से बचे रहते हैं। लेकिन आप अपने जीवन में सोचो, क्या आपने कोई झूठ बोला? सबसे बड़ा झूठ जिससे आप खुद परेशान हुए हो या किसी और को परेशान किया हो? आंसर है यस, बोला। मेरे को नहीं बताने की जरूरत, अपने मन में। दूसरा क्वेश्चन, क्या उस झूठ ने कभी किसी की जान ले ली? अगर ऐसा है तो फिर सबसे बड़ा झूठ है दुनिया का। मेरी बात समझ गए? अगर मेरे झूठ बोलने से मैं सुखी को बोलता हूं, सुखी जा बाहर ट्रैक पे खड़ा हो जा, ट्रेन नहीं आने वाली, आंखें बंद कर लेना, आवाज आने बंद कर लेना, ट्रेन नहीं आएगी, और उधर से ट्रेन आ जाती है, तो इससे बड़ा झूठ कोई हो सकता है? कोई और जो किसी की जान ले ले? नहीं हो सकता। अब मैं सुखी को बोल, सुखी यार पैसे दे लोड़ आ, मेरे दिमाग में पहले ही हुए पैसे वापस नहीं करने इन्हों, वो तो ठीक है भी, चलो पैसे से मैंने उसको हर्ट कर दिया, राइट? झूठ है लेकिन उसको इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ पता किसने बोला? शैतान ने। आज भी लोगों के कानों में बोलता है, कुछ नहीं होने वाला, कोई बोलने की जरूरत नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जस्ट चिल। ये बात शैतान ने हवा को बोली, अगर तू ये फल खाएगी तो नहीं मरेगी, हालांकि उसको पता था ये मर जाएगी। आज भी लोगों के कानों में शैतान बोलता है, आज भी बोलता है, ये ऐਵੇਂ बोली जाता है, इन्हें कुछ पता ही नहीं है। एक्चुअली मेरे को कुछ नहीं पता, जिसने ये बात बोली है ना उसको सब कुछ पता है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले बोल दिया था, जिस दिन तू फल ये खाएगा, हवा आदम को बोला तू मर जाएगा, उसको पता था। लेकिन झूठ जो शैतान ने बोला, आज भी लोगों के जीवन में वो काम करता है। हमें उस झूठ को नजरअंदाज कर लेना, अपने कान फेर लो कि आप बच जाओगे। मैं तो नहीं बचने वाला, कोई भी नहीं बचने वाला। खुद परमेश्वर के कलाम में लिखा है, अभी जो हमने कलाम पढ़ा, प्रभु जी निकोदेमुस को कहते हैं, जैसे सांप जो है वो ऊंचे पर चढ़ाया गया था, यह जरूरी है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। और
साथ में प्रभु जी कहते हैं इसलिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। बता, खुदा ने सब कुछ दिया हमें। दो चीजें हैं जो हमें हमेशा परेशान करती हैं, वो पता क्या है? सेल्फ राइचियसनेस और सेल्फ जस्टिफिकेशन। मैं अपने आप को धर्मी कहता हूं, लेकिन परमेश्वर का स्केल क्या है मेरे धर्म के कामों के प्रति? मैं कहता हूं कि मैं पापी नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर का स्केल क्या है? डज ही जस्टिफाई मी? क्या वो मेरे को कहता है भी ठीक है, तू तेरे काम बिल्कुल सही है, धर्म के काम है तेरे? समटाइम्स वी जस्टिफाई अवर सेल्फ। गलती करते हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। एंड गॉड सेज रिपेंट, माफी मांग ले। वी से नो, वी डोंट नीड इट, क्योंकि शैतान बोलता है बीच में, तू नहीं मरेगा। और हुआ पता क्या? आदम भी मरा, हवा भी मरी। लिखा है पाप की वजह से मौत इंसानी जात में आ गई, इसलिए अब सब मरते हैं। आदम की उम्र करीब 930 साल लिखी है बाइबल में, राइट पास्टर? 930 साल बहुत होते हैं, लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है परमेश्वर की हजूरी में 1000 साल एक दिन के बराबर है, और एक दिन 1000 साल के बराबर है। खुदा ने उसको बोला था जिस दिन तू फल खाएगा तू मर जाएगा। इसका मतलब उसने 1000 नहीं पूरे किए। मेरी बात समझ गए? उसकी एज खुदा ने माइट बी हैव मोर देन 1000 years, बट वो लिखा उसी दिन मर गया, क्योंकि खुदा ने बोला था। अगर आज अपने कान हम बंद कर लेंगे, दोबारा मौका नहीं मिलने वाला। प्रभु यीशु ने बोला मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। एक तरफ शैतान की आवाज है, एक तरफ यीशु कहता है मैं सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही मार्ग हूं। मैं अपने धर्म का कोई प्रचार नहीं कर रहा, डोंट टेक मी रॉन्ग, आई एम प्रीचिंग द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का प्रचार कर रहा हूं, धर्म का नहीं। अगर मैं धर्म का प्रचार करता तो यहां ना करता, है ना? मैं डाउनटाउन टोरंटो में खड़ा होता, जहां पे, है ना, लोगों को बोलता। क्यों? क्योंकि आप यहां पे आए हैं। मैं नहीं चाहता कि आप उस नाम से ना वाकिफ रहें। कोई नाम नहीं दूसरा दिया गया, परमेश्वर का कलाम कहता है, जिसके बगैर हम बचाए जाएं, जिसके वसीले हम बचाए जाएं। ओनली देयर इज वन नेम। और क्यों नाम दिया गया वो? बाकी भी तो नाम है, क्योंकि सब, मैंने पहले बोला, आदम और हवा से जन्मे हैं, और वो पाप का सीड हमारे बीच में है। लेकिन एक है जो आदमी और औरत के मिलाप से नहीं पैदा हुआ, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। और उससे भी बड़ी गवाही, अगर आप ये बाइबल ना भी पढ़े ना, आप गूगल पे सर्च कर लें, हिस्ट्री की बुक्स ब्रैमली जाके लाइब्रेरी में पढ़ लें, और बहुत सारी बुक्स मिल जाती हैं हिस्ट्री की, वो पढ़ लें। वो भी नहीं पढ़नी तो रोमन्स की उस टाइम की बुक्स पढ़ लें, जिनमें यीशु नामक एक मनुष्य का जिक्र है। परमेश्वर का कलाम कहता है वो सिर्फ पैदा ही नहीं हुआ और सिर्फ मरा ही नहीं, वो तीसरे दिन जी उठा, क्योंकि पाप का और मौत का उसके ऊपर इख्तियार नहीं है। इसलिए हम उसकी प्रस्तिश करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसा वो है हम भी मौत से पार हो जाएंगे। आमीन। आपको पता है एंटी वेनम कैसे बनता है? जब कोई कोबरा सांप या रैटल स्नेक या कोई और मांबा, है ना, डिस्कवरी सबने देखा होगा, डंक मार देना तो बंदा कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाता है। पाप का डंक ऐसे ही है, पाप ऐसे ही डंक मारता है और इंसान के जीवन को खत्म कर देता है। लेकिन आपको पता है एंटी वेनम कैसे बनता है? मैं रिसर्च कर रहा था इसके ऊपर। जिस सांप ने काटा हो ना, उसी का जो पॉइजन है, उसका विष लेके, उसको मिल्किंग कहते हैं, जैसे दूध निकालते हैं गायों का,
अब सांप की जो विष को लेते हैं उसको मिल्किंग कहते हैं, अभी मिल्क निकाल रहे हैं उसका। अब उसको या तो घोड़े को या रैबिट्स को या चूहे को, मतलब चूहे को नहीं, थोड़ा बड़ा जानवर हो, उसको देते हैं वो, और उनमें इतना ज़्यादा नहीं देते कि वो मर जाए, उनमें एक एंटी पॉइजन एक प्लाज्मा बन जाता है, धीरे धीरे करके देते हैं ताकि वो मरे भी ना, और उसमें इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं रेसिस्टिव पावर आ जाए उस पॉइजन के प्रति कि वो जीवित रहे। बाद में उसका खून निकाल लेते हैं, ऐसे नहीं भी खून निकाल के मार दिया उसको, उसका खून निकाल के वापस डालते हैं, लेकिन प्लाज्मा उसमें से निकाल लेते हैं, और वो प्लाज्मा जो है वो एंटीवेनम है। एक और एग्जांपल देता हूं, जितनी खतरनाक कोविड-19 थी ना, उससे ज्यादा खतरनाक इबोला है। सुना आपने इबोला के बारे में? इट्स मोर, मोर्टेलिटी रेट इज वेरी हाई इबोला का। जितने भी जो हेल्थ वर्कर्स वहां पे गए, बहुत सारे मर गए वहां पे, क्योंकि उसका इलाज ही कोई नहीं था। वहां पे एक नर्स थी जो लगातार बहुत देर से इबोला के पेशेंट्स में काम कर रही थी, वो मरी नहीं। उसके शरीर में ऐसा एक प्लाज्मा खड़ा हो गया जो उस इबोला के वायरस को रेसिस्ट कर रहा था। एंटीबॉडी बन गई, यू गॉट इट राइट, या एंटीबॉडी बन गई। अब उन्होंने देखा भी ये मरी नहीं, ये तो सबसे ज्यादा लोगों के टच में आई है, तो उन्होंने उसका प्लाज्मा लिया, और प्लाज्मा वाज एंटीबॉडी। सो वो पूरे वर्ल्ड में घूमी, जहां जहां बोला था उसने अपना ब्लड देती रही, और उसी ब्लड से आगे प्लाज्मा बनता रहा, और आज वो इबोला की मेडिसिन बनी हुई है। मेरी बात समझ गए? जिसमें पाप नहीं है, जहां जिसके खून में पाप नहीं है, वही है who is able to give you his own life. Amen? Otherwise nobody can. सब आए, माता पिता के पेट से पैदा हुए, उनके पिता के नहीं, मतलब माता के पेट से पैदा हुए, लेकिन वो मौत के अधीन रहे। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वो सिर्फ पैदा हुआ, मर भी गया, और तीसरे दिन जी उठा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर मौत का अधिकार नहीं है, वो एंटी वेनम उसके अंदर ऑलरेडी प्लाज्मा है, और उसने बोला मैं तुम्हें अपना खून देता हूं, इसे तुम लो। अब जब हम उसे लेंगे हम भी जीवित रहेंगे। इसलिए दूसरा कोई नाम नहीं। हर किसी को साल्वेशन की जरूरत है, मुक्ति की जरूरत है, हर किसी को अपने बचाव की जरूरत है, क्योंकि इंसान की तासीर में पाप है, इंसान के खून में पाप है, इंसान के अंदर जो पैदा होता है उसकी कॉन्शियस में पाप है। कॉन्शियस समझते हैं? विवेक, मेरी सोच में पाप आ जाता है, और एक ही है जिसमें पाप नहीं है, और परमेश्वर का कलाम कहता है वो है प्रभु यीशु मसीह। और वही सिर्फ आपके नहीं, इतने यहां बैठे, लिखा पूरे जहान के उद्धार के लिए उसने जीवन दिया। और निकोदेमस जब प्रभु के पास आया, निकोदेमस ने बोला ठीक है जो तू काम कर रहा है ये बड़े हैं, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा है। हालांकि बोला नहीं उसने, उसका मन बोल रहा था। प्रभु कहते हैं ओके देन बॉर्न अगेन। उसके बाद प्रभु अपनी बात करते हैं कि अब मैं चढ़ाया जाऊंगा ऊपर, और उसके बाद मैं जी उठूंगा, और बहुतों के लिए मैं प्राण और जीवन दे दूंगा। क्यों? क्योंकि ये पहले हो चुका था। जो उसकी तरफ देखेगा, जो अपने मुंह से अंगीकार कर लेगा, जो बोलेगा हां मैं अंगीकार करता हूं, वो जीवन पाएगा। और हम इस प्रिविलेज से कान बंद करके बैठे नहीं रह सकते। इट्स योर डिसीजन नाउ। यू आस्क हिम, प्रभु हाँ मैंने पाप किए हैं। मैं आपको पाप गिनाने के लिए नहीं आया यहां पे, है ना? ये मेरा, वो आपको खुद पता है कितने पाप किए हैं, मेरे को अपने पाप का पता है। हम सबके पापों का खुदा को पता है, परमेश्वर को पता है। लेकिन हम जानते हैं कि हम अपने कर्मों से पापी हैं, और अगर हम अपने पापों को नहीं मानेंगे
अंगीकार नहीं करेंगे और केवल एक उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह, उसका नाम अपनी जुबान से नहीं लेंगे, हम उद्धार नहीं पा सकते। बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड सेज, जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर के पुत्र होने का, बच्चे होने का अधिकार दिया। सो वी हैव टू रिपेंट अवर सिंस, accept our sins. We have to accept Lord Jesus Christ as our personal savior. हम कहें उससे, अगर कोई परमेश्वर है अपने आप को दिखाए। मैं आपको साधु सुंदर सिंह की कहानी सुना के खत्म कर देता हूं। अभी 2 दिन पहले आई थिंक मनाया उन्होंने, है ना, उनका जन्म स्थान लुधियाना के पास एक रामपुर नाम है, रामपुर या बदसुखी, नहीं रामपुर है, लुधियाना के पास एक शहर है। साधु सुंदर सिंह नाम एक व्यक्ति हुए, वो रॉयल फैमिली से आते थे, जो पटियाला जो रॉयल फैमिली है ना, उसमें से आते हैं वो। शुरू से लेकर आखिर तक वो एक परमेश्वर की खोज में थे, और वो कहते हैं अगर कोई सच्चा परमेश्वर है तो मेरे को आके मिले, नहीं तो मैं ये जो अमृतसर से दिल्ली वाली ट्रेन जाती है उसी के नीचे सिर दे के मर जाऊंगा सुबह, है ना। मुझे को ट्रेन का नाम भूल गया, क्या था, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, आई थिंक सो, क्योंकि मैं भी सफर करता रहा हूं उसमें, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में, है ना। मैं लुधियाना जब काम करता था तो मैं करतारपुर से बैठता था, वो लुधियाना लेके जाती थी। साधु सुंदर सिंह कहते हैं कि मैं इसके गाड़ी के नीचे सिर दे के मर जाऊंगा अगर कोई परमेश्वर है अपने आप को दिखाए। सारी जिंदगी मैंने उसको ढूंढा है, मैंने अपने ग्रंथों में, मैंने कहां नहीं उसको ढूंढने की कोशिश की, अगर है तो दिखाए। और वो अपनी जीवनी में लिखते हैं कि सुबह के 4 बजे के करीब जब ट्रेन का आने का समय था, उससे पहले प्रभु यीशु से उनके कमरे में आए और बोलते, मैं यीशु जिसको तो ढूंढ रहा है इतने समय से। और उनका सारे जीवन भर वो पैदल यात्रा, उनको बोलते हैं मैन विद ब्लीडिंग फीट, है ना, मतलब पैदल कर करके पता नहीं कहां कहां वो घूमे और प्रभु यीशु का प्रचार किया। उनके घर वालों ने उनको तिरस्कार किया, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है, मैं खत्म कर रहा हूं 2 मिनट और, परमेश्वर के कलाम में लिखा है, एक मनुष्य व्यापारी, लिखा है व्यापारी, व्यापार सब करना चाहते हैं भी फायदा हो। एक व्यापारी अच्छे मोतियों की तलाश में बाहर निकला, ढूंढने निकला, और उसको एक सुच्चा मोती मिल गया। अब तलाश किसकी कर रहा था? मोतियों की, एक मोती की नहीं। लेकिन जब उसको वो एक मोती मिला, लिखा वो सब कुछ बेच के अपना उसने वो मोती मोल ले लिया, सब कुछ बेच दिया उसने अपना। क्यों? क्योंकि उसको पता है, जो प्रभु ने बात निकोदेमस को बोली, यू वांट टू सी द हेवन, ये तो थोड़ी देर, हमारी एज कितनी है, 80 साल 90 साल 100, है ना। जो चाइनीज होंगे तो 110 भी निकाल लेंगे, राइट। उनकी जो मतलब एवरेज एज है उनकी ज्यादा है जापानीज लोगों की। लेकिन उसके बाद क्या, हम सब ने परमेश्वर के सामने खड़े होना है, और आज वो मौका है कि हम जो जीवित निकला इस धरती में से, जीवित उठ गया, हम उसको देखें, अपने जीवनों में अंगीकार करें। अगर कोई परमेश्वर है, अगर कोई है तो, लेकिन पहले अपने पापों का अंगीकार करें, हां मैंने पाप किए, तो परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करेंगे। आमीन। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर खुदा बाप, तू जो था, तू जो है और फिर आने वाला है, आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर, आपके कदमों को चूमते हैं प्रभु, क्योंकि आप ही सच्चे ईश्वर हैं। ओनली यू आर द ट्रू गॉड, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु। जब प्रभु हमने ये कलाम पढ़ा, सुना है प्रभु जी, होने दे कि हम अपने पापों का अंगीकार करें, अपने पापों को मान लें प्रभु,
ताकि वो आवाज जो हमारे कानों में पड़ती है कि कुछ नहीं होने वाला, डोंट वरी, चिल, खुदा बाप, वो आवाज हम सुनना बंद कर दें और अपने जीवनों के लिए प्रभु जी हम ये बात समझे प्रभु कि मैं अभी कहां पे खड़ा हूं और कहां जाने वाला हूं। पिता, आप इन सब लोगों के जीवन में और मेरे जीवन में प्रभु जी, हम सबके जीवन में प्रभु जी कार्य करें। और पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी कि आप जब आपका कलाम प्रभु, आपका वचन प्रभु मैंने शेयर किया है, ये वचन प्रभु जी सबके जीवन में प्रभु जी कार्य करें। और पवित्र आत्मा, आप हर एक के ऊपर अपना कब्जा लें और अपनी सामर्थ प्रभु हर एक के ऊपर दिखाएं। और पिता परमेश्वर अपने आप को रिवील करें हर एक के ऊपर, ताकि हम सब जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। और जैसा निकोदेमस ने बोला प्रभु कि हमने तो सिर्फ तेरे कामों को देखा और सुना ही है, प्रभु हम एक्सपीरियंस कर सके प्रभु उस काम को जो आपने हमारे लिए किया, क्योंकि आपने हमारे लिए अपनी जान दी ताकि हम मौत से पार हो जाए, हम पाप में ना मरें। प्रभु आप खुद हमारे लिए पापी बन गए ताकि हम पाप से छूट जाएं, क्योंकि पाप जो है वो मृत्यु को पैदा करता है। और पिता परमेश्वर हमें इस मृत्यु से बचाएं। और पिता परमेश्वर हर यहाँ पे बैठे हर एक जन को प्रभु यीशु के नाम से मैं बरकत देता हूँ। और पिता परमेश्वर आप हर एक के जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा काम करें। और बाकी का सारा समय प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। आज की सारी आराधना, उपासना, वचन प्रभु, डेडिकेशन, हर चीज को प्रभु सिर्फ आदर, आपके आदर में हम समर्पित करते हैं। और पिता परमेश्वर आप हर एक के जीवन में कार्य करें और अपने रेवलेशन हर एक के ऊपर रिवील करे पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। बाकी का सारा समय प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी अगुवाई करें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और बाकी का समय सिस्टर डॉली टेक ओवर करेंगे। अभी प्रार्थना खत्म नहीं हुई, बरकत का कलमा पढ़ेंगे, उसके बाद खत्म होगी। लेकिन अभी सब फैमिली जो सॉन्ग गाएंगे इकट्ठे होकर, ठीक है जी। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੇਕ ਕਟਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਕਰਾਂਗੇ। प्रेज जीसस। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ चलेंगे, यीशु मसीह से बात करेंगे, यीशु मसीह से प्यार करेंगे। मैं और मेरा घराना मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ चलेंगे, यीशु मसीह से बात करेंगे, यीशु मसीह से प्यार करेंगे। मैं और मेरा घराना पूजा करेंगे यीशु की, रूह कुदस से जिएंगे, पूजा करेंगे यीशु की, रूह कुदस से जिएंगे। हर बात यीशु मसीह
हम करेंगे हर बात यीशु मसीह की बुद्धि से हम करेंगे। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह की सेवा करेंगे। यीशु मसीह से बातें करेंगे, यीशु मसीह से प्यार करेंगे। खुशियाँ से महके ये आंगन, खुशियाँ ही खुशियाँ हो हर सू। खुशियों से महके ये आंगन, खुशियाँ ही खुशियाँ हो हर सू। दुख हमें जो दबाए आत्मा से बात करेंगे। दुख हमें जो दबाए आत्मा से बात करेंगे। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह से बात करेंगे। यीशु मसीह से प्यार करेंगे। यीशु मसीह के साथ चलेंगे। होगा मिसाली घराना, हालेलुया होगा तराना। होगा मिसाली घराना, हालेलुया होगा तराना। कश्ती न डूबने देवो, यीशु को पतवार देंगे। कश्ती न डूबने देवो, यीशु को पतवार देंगे। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ चलेंगे। यीशु मसीह से बातें करेंगे। यीशु मसीह से प्यार करेंगे। मैं और मेरा घराना। प्रेज जीसस। थैंक यू सारिਆਂ ਦਾ। थैंक यू सो मच सारिਆਂ ਦਾ। प्रभु ने बहुत वधिया दिन दिखाया कि ये दिन असी देख पाए। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ, मैं जीरो सी। जीरो तो प्रभु यीशु मसीह ने ਮੈਨੂੰ चुक के ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। कोई दिन ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, मैं पहले आसमान ते सी, आसमान तो धरती ते आ गई और धरती तो खुदा बाप ने मैनू उठाया, आसमान ते पहुँचाया। खुदा सानू कदी भी नहीं छड्डदा, कदी भी अनाथ नहीं छड्डदा, हमेशा साडे नाल आ। अगर जे साडी किसी ने मदद कीती ते प्रभु यीशु मसीह ने उन्हां दे दिलां विच पाया ते उन्हां ने साडी मदद कीती। इत्थे साडे विच बैठे होए ने गगन, उन्हां दी वाइफ, उस परिवार ने भी साडी बहुत मदद की। बहुत सारे लोगों ने मदद की, पर उन्हां दे दिलां विच कौन आया? खुदा बाप। प्रभु यीशु मसीह ने अज मैनू, मेरे परिवार नू बहुत वधाया, बहुत खुशियां दित्तियां। मैं सब दा बहुत बहुत धन्नवाद करदी हाँ। मैं बहुता नहीं बोलना चाहती क्योंकि मेरे च हिम्मत ही नहीं आ कि मैं सारा कुछ अपने बारे दसां। आमीन। हाँ जी, हुण असीं केक कटिंग सैरेमनी करांगे ते सारे अगे आ जाण प्लीज़। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਿਖਾਈ ਹੋਈ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਪਾਸਟਰ ਸਮੀਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਬੈਨੇਡਿਕਸ਼ਨ ਵਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਰਾਧਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ।
ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर वालों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमको मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हम सब के साथ, हमारे परिवारों के साथ, हमारे घरानों के साथ, दुनिया के तमाम ईमानदारों के साथ और ख़ास करके अमजद उसके परिवार के साथ और छोटी बेटी होप के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू सो मच। अभी केक कटिंग सेरेमनी है, सो आप सब शरीकों परिवार के साथ